Hi viewers, this is me Akanksha. I'm coming my first live class, that is head injury. So in this topic we will discuss about the head injury, what are the major causes of head injury and how we can manage the head injury cases. So whoever didn't like, share and subscribe our YouTube channel, please like, share and subscribe our YouTube channel. So we let's move to the topic. So what are the content we are going to deal here? So in this we will see first introduction of the head injury, what are the definition of head injury, classification, types, what are the major causes of head injury, and then pathophysiology of head injury, and clinical manifestation, what are the signs and symptoms during head injury we can see. Okay, next is diagnostic evaluation, how we can diagnose the head injury, and what are the management. Under the management we will see medical management, surgical management and nursing management. So next will start with the introduction. So head injury, normally we talk about the head injury. तो head injury होता क्या है? Head injury जैसे कि माइनर से लेकर मॉडरेट एंड सीवियर तक की हेड इंजरी देखने को मिलती है. जैसे हेड इंजरी बोले तो सर में चोट लगना, ठीक है. तो सर में चोट, स्काल्प इंजरी लाइक माइनर कट हो रहा है, थोड़ा सा वुंड हो रहा है, और मेजर मॉडरेट मतलब हेमेटोमा, लिटिल हेमेटोमा हेड में फॉर्म हो रहा है, या फिर सीवियर तक लाइक कॉन्शियसनेस लेवल तक अल्टर्ड हो रहा है. तो ये ओवरऑल आपका हेड इंजरी में आएगा. हेड इंजरी कैन बी माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर टाइप ऑफ कंडीशन एंड इट कैन अकर इन आवर स्काल्प, स्कल एंड ब्रेन. ओके, so head injury is a broad classification that includes the injury to the scalp, skull or brain. ठीक है, head injury can occur either scalp, skull or brain. So the terms traumatic brain injury and head injury are often used interchangeably in the medical term. So head injury sometimes we call the traumatic brain injury. Okay, next we will see what is the definition. So a head injury includes any injury or trauma to the scalp, skull or brain. A serious form of head injury is a traumatic brain injury, as already discussed in the introduction. If a head injury will be in a severe type of head injury, that we called as a traumatic brain injury. Head injury can occur in our scalp, skull and brain. Okay, according to WHO, head injury or a traumatic brain injury refers to any damage to the scalp, skull or brain caused by an external force potentially leading to a disturbance in normal brain function. Okay, whenever you are getting head injury in scalp, skull or brain, at that time there will be impairment or dysfunction of the brain function also. Loss of consciousness can be seen, okay, due to hematoma or increased ICP under that condition. So this under the normal brain function, under motor function, sensory function, everything will come. So if any person getting head injury at that time, what will happen? Their normal brain function can altered. Okay, next we will see what are the classification. So this classification is categorized according to Glasgow-Coma scale. In short form we say GCS scale. So according to GCS scale, head injury have been classified in mild, moderate and severe. So GCS scale में स्कोरिंग के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे डिवाइड किया गया है हेड इंजरी को. तो अगर GCS माइल्ड कंडीशन में GCS स्कोर हमें कितना देखने को मिल सकता है? 13 to 15 with a loss of consciousness lasting up to 15 minutes. In mild, if head injury is a mild type of, in that condition GCS score will be 13 to 15 and loss of consciousness can be seen in a person not more than 15 seconds. It's up to 15 seconds तक लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस देखने को मिल सकता है. दैट इज कॉल्ड एज माइल्ड टाइप हेड इंजरी. सो इन मॉडरेट हेड इंजरी GCS score will be seen 9 to 12, okay,
and there will be loss of consciousness lasting up to 6 hours. 6 आवर तक पर्सन का कॉन्शियस लेवल अल्टर्ड हो सकता है, वो कॉन्शियस अनकॉन्शियस हो सकता है, एंड इस टाइम पे जीसीएस स्कोर कितना देखने को मिलेगा, 9 to 12. If we talk about the severe type of head injury, under that we can see GCS score, Glasgow Coma score will be 3 to 8. Okay, 3 to 8 will be seen, and loss of consciousness will be more than 6 hours. ठीक है, so we under the classification we have seen 3 type of classification: mild, moderate and severe. Under the mild there will be GCS score 13 to 15 and consciousness level will be up to 15 minutes. Under the moderate GCS score will be 9 to 12 and loss of consciousness will be up to 6 hours. Okay, in severe GCS score will be 3 to 8 and loss of consciousness will be greater than 6 hours. So next we will move to the types of head injury. Under the head injury we will see scalp injury, skull injury. Under the skull injury, skull fracture will be seen, like linear, depressed, basilar fracture, comminuted fracture. These are the types of fracture, okay, which can be seen in the skull fracture. Fourth one is brain injury. Under the brain injury we see concussion, counter co, diffused axonal injury, intracranial hemorrhage. These things we detailedly will see in, further. Next, so scalp injury. First is scalp injury. So I think everyone know what is the scalp. Scalp, our outer covering of the brain where hairs grow. Okay, so if scalp injury, what will happen? Any type of minor laceration will be there, okay, or laceration or abrasion can be seen in the scalp. So it can be minor and sometimes is moderate condition also. Deep injury can be seen also in scalp injury. So external whenever you are getting the head injury, it will be due to the external trauma because of अगर आप कहीं पे भी ऊंचाई से गिर रहे हो या फिर रोड ट्रैफिक, मोस्ट ऑफ द कॉजेज देखने को मिलता है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, तो किसी भी रीजन की वजह से आपको स्काल्प में इंजरी हो सकती है. स्काल्प इंजरी में हमें सिर्फ इतना ध्यान देना है कि स्काल्प इंजरी बहुत ज्यादा सीवियर नहीं होती है, माइनर होती है, लैशरेशंस देखने को मिलते हैं, ठीक है, जो कि एक्सटर्नल ट्रॉमा की वजह से देखने को मिल सकता है. एंड सीवियर तब हो सकती है अगर बहुत ज्यादा ब्लंट ट्रॉमा हुआ है, बहुत ज्यादा कट हो गया है स्काल्प में, जिसकी वजह से ब्लड बहुत ज्यादा लॉस हो गया है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, हाइपोवोलेमिया हो सकता है, फर्दर लीड कैन हाइपोवोलेमिक शॉक ऑल्सो. एंड अगर सीवियर टाइप ऑफ हैंड इंजरी हुई है, बहुत ज्यादा वुंड हो गया है स्काल्प रीजन पे, अगर हम प्रॉपर केयर नहीं कर रहे हैं तो वो फर्दर कॉम्प्लिकेशन कॉज कर सकता है, इन्फेक्शन लीड कर सकता है. ओके, सो दीज आर अबाउट द स्काल्प इंजरी. नेक्स्ट, skull injury. Under the skull injury, a head injury may cause a minor headache and skull fracture. Skull fracture is a break in the continuity of the bone caused which can be in a various way, like linear fracture, depressed fracture, comminuted fracture, simple and compound fracture, and basilar fracture. Okay, these are the types of the skull fracture which can be seen in the skull bone. So in skull injury, our cranium is there, na, cranium is made up of the bone only. So if you are getting blunt of trauma, सीवियरली हिट हो रहा है आपका हेड किसी भी रीजन की वजह से, कहीं से गिरने की वजह से, उसकी वजह से आपका सीवियर टाइप ऑफ ट्रॉमेटिक इंजरी हो रही है, जिसकी वजह से स्कल बोन क्या हो जाती है, फ्रैक्चर हो जाती है. व्हाट इज फ्रैक्चर? नॉर्मली वी ऑलरेडी हैव वी नो कि इफ देयर विल बी impaired in the continuity of the bone, like one pattern is there of the bone, if there will be break in the bone, that will be that will called as a fracture only. So in skull fracture, it can be a different type, like linear fracture. If we'll talk about linear fracture, तो linear fracture में क्या होता है,
एक फाइन हेयर लाइक लाइन बन जाती है, ब्रेक जो हमारी बोन्स होती हैं वो ब्रेक नहीं होती हैं, उसको हम लीनियर फ्रैक्चर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। डिप्रेस्ड फ्रैक्चर लाइक कोई ब्लंट ट्रॉमा हो रहा है, सपोज कि बहुत सीवियर टाइप ऑफ फोर्स हो रहा है, ब्लंट ट्रॉमा हो रहा है हेड पे, जिसकी वजह से बोन क्या होती है अंडर द डिप्रेस्ड हो जाती हैं, उनका डिप्रेशन देखने को मिल सकता है। लाइक ये पोर्शन है, अगर कोई भी चीज यहाँ पे हिट हो रही है, फोर्सफुली हिट हो रही है, तो ये हमारा एरिया अंदर की तरफ धंस जाना, दैट इज टाइप ऑफ डिप्रेस्ड फ्रैक्चर यू कैन सी इन द skull. So this is the depressed fracture. Comminuted fracture. Under comminuted fracture, bones will be break in the multiple pieces, that we call the comminuted fracture. Simple fracture, normally bone will be break, that is a simple fracture. Compound fracture, under that bones will be seen in multiple pieces also, and this will penetrate the scalp also. Last one is basilar fracture. Under the basilar fracture means base of the skull, there will be fracture can be seen. So this is the most complicated type of fracture which will be seen under the head injury. So next is skull fracture, which I already discussed in detail. So ब्रेन इंजरी, ब्रेन इंजरी की बात करें, अगर कोई भी केसेस आते हैं हेड इंजरी के, तो डॉक्टर सबसे पहले मेक श्योर करते हैं कि पर्सन को ब्रेन इंजरी तो नहीं हुई है, ब्रेन इन्वॉल्व नहीं हुआ है। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि उस टाइम पे मतलब ब्रेन इंजरी इट इज ए मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड। व्हाई इट इज मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड? बिकॉज when your brain is involving during head injury, so it can cause a major consequences like seizures, hematomas will be there, severe if continuously increasing ICP also, and blood supply also will be interrupt. Due to blood supply interruption, what will can seen ischemia, and ischemia can further lead to brain dead. So brain dead की कंडीशन में हम रिवाइव नहीं कर सकते पेशेंट को। सो इसीलिए हमें ये चीजें मेक श्योर करना है कि पर्सन का ब्रेन इन्वॉल्व तो नहीं हुआ है, अगर ऐसा कोई केसेस आ रहे हैं। तो ब्रेन इंजरी इसीलिए कॉम्प्लिकेटेड होती है क्योंकि क्योंकि हमारे जो ब्रेन होता है बहुत डेलिकेटेड पार्ट होता है, वहाँ पे अगर थोड़ा सा भी चोट लग रहा है तो वहाँ की जो माइनर ब्लड वेसल्स होती हैं वो रप्चर हो जाती हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से टेम्पोररी परमानेंट इम्पेयरमेंट हमें ब्रेन फंक्शंस में देखने को मिल सकती हैं, डिसेबिलिटीज हो सकती हैं, पर्सन रिवाइव ना होने की कंडीशन भी हो सकती है, साइकोलॉजिकल माल एडजस्टमेंट भी देखने को मिल सकता है। आई होप कि ब्रेन इंजरी सबको समझ आई होगी। नेक्स्ट, concussion. Under the brain injury already we listed what were the things we discussed. So concussion एक mild type of injury होती है। concussion में क्या होता है? Already concussion is a considered as a mild brain injury characterized by a temporary loss of neurological function without structural damage. Symptoms may include a loss of consciousness lasting up to 5 minutes, headache, dizziness, nausea and vomiting. सो कंकशन क्या होता है? माइल्ड टाइप ऑफ हेड इंजरी होती है, इसमें कोई भी ऐसा स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं देखने को मिलता है। माइल्ड टाइप ऑफ हेड इंजरी मतलब कि हमारा ब्रेन स्कल के अंदर होता है ना, तो अगर सडनली कहीं पे हिट हो रहा है तो उसकी वजह से ब्रेन में एक शेयरिंग फोर्स लगता है, मतलब मूवमेंट होता है, हमारा जो ब्रेन है वो इनसाइड मूव करता है, जिसकी वजह से मूवमेंट की वजह से वो हिट होता है हमारे स्कल बोन पे। स्कल बोन पे अगर हिट हो रहा है उसकी वजह से जो हमारा ब्रेन होता है वहाँ की जो माइनर ब्लड वेसल्स होती हैं वो रप्चर हो जाती हैं, माइनरी रप्चर होती हैं, तो लिटिल हेमाटोमास वगैरह देखने को मिल सकता है, और जिसकी वजह से हमें हेडेक, डिजीनेस, नोजिया एंड वोमिटिंग ये सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं अगर कंकशन टाइप ऑफ ब्रेन इंजरी हुई है तो। ठीक है, नेक्स्ट है कंट्यूजन। सो अंडर द कंट्यूजन ये कंकशन से थोड़ा मॉडरेट टाइप ऑफ इंजरी होती है। इसमें मेनली हमें ब्रूइसेस देखने को मिलता है। ब्रूइसेस मतलब इकाइमोसिस, मेनली ब्लड वेसल्स रप्चर होने की वजह से ब्लड लीकेज होना, वो हमारा ब्रूइसेस कहलाता है। ठीक है, तो कंट्यूजन आर ब्रूइसेस ऑन द ब्रेन टिश्यू काज्ड बाय द ट्रॉमा। इन सम केसेस दे कैन लीड टू द हेमरेज। ऑलरेडी ब्लड वेसल्स रप्चर हो रही है तो हेमरेज जाहिर है लीड करेंगी, which may be reabsorbed into the brain tissues if blood is absorbed into the cerebrospinal fluid or CSF we can say,
It can result in permanent neurological damage. Brain contusion typically occurs in the frontal and temporal lobes, and period of unconsciousness may be also observed. ठीक है, ऑलरेडी आई टोल्ड कि कंकशन वाज द माइनर टाइप, पर कंट्यूजन इज like severe type of head injury will be there in this. So in this what will happen due to the trauma, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं मेजरली रप्चर हो जाएंगी, जिसकी वजह से वहां पे बहुत ज्यादा लीकेज ऑफ ब्लड देखने को मिलेगा. वो ब्लड हमारे ब्रेन टिश्यू में एब्जॉर्ब होता है, नॉर्मली एब्जॉर्ब हो सकता है. ये ब्लड हमारा सीएसएफ में भी एब्जॉर्ब हो जाता है समटाइम्स. तो अगर सीएसएफ में ये ब्लड लीक होके एब्जॉर्ब हो रहा है, जिसकी वजह से हमें परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डैमेज देखने को मिल सकता है. सो परमानेंट ब्रेन डैमेज देखने को मिल सकता है, और मेनली ये हमारा किस किस रीजन में ज्यादातर देखने को मिलता है कंट्यूजन, वो है आपका टेम्पोरल लोब्स, फ्रंटल लोब्स में ज्यादा देखने को मिलता है. 2 रीजंस आर इन्वॉल्व इन दिस, फ्रंटल एंड टेम्पोरल रीजन, जो कि मेनली देखने को मिलता है कंट्यूजन. तो नेक्स्ट, कोप एंड काउंटर कोप. It's also known as accelerated or decelerated brain injury occur when the brain hits the skull anterior wall during a sudden violent head movement. This type of traumatic brain injury can cause damage to the impact side and the opposite side of the brain. So cope and counter cope क्या होता है, सिंपल भाषा में समझेंगे कि स्कल के इनसाइड हमारा ब्रेन होता है. सडनली जैसे हम चलते चलते समटाइम्स फोन वगैरह चला रहे होते हैं, तो हम सामने देखते नहीं है, पर जाके हम लड़ जाते हैं दीवार पे. तो उसकी वजह से एक शेयरिंग फोर्स, सडन फोर्स लग रहा है हमारे हेड पे. तो हेड हमारा जैसे कि हमारा हिट हुआ वॉल पे, उसकी वजह से जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन इनसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगा. तो वो हमारा ब्रेन भी शायद जस्ट इम्पैक्टेड साइड पे हिट हुआ, एंड रिलीज होने के बाद अपोजिट साइड पे भी हिट हो रहा है, जिसकी वजह से एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली डैमेज देखने को मिलता है. उसी को हम कोप एंड काउंटर कोप बोलते हैं. दिस इज ऑल्सो नोन एज एक्सीलरेटेड एंड डेसिलरेटेड ब्रेन इंजरी ऑल्सो. ओके, नेक्स्ट, like that you can see in a picture. Next is diffused axonal injury. Diffused axonal injury is a widespread form of axonal damage that primarily affect the axons in the subcortical and white matter of the cerebral hemisphere, basal ganglia, thalamus and brain stem. It often result in a long-term neurological damage. डिफ्यूज एक्सोन नॉर्मली हमारा जो नर्व सेल होती हैं उनमें पाया जाता है एक्सॉन्स. तो एक्सॉन मेनली हमारा वाइड स्प्रेड कहाँ एक्सॉन ऑल ओवर द ब्रेन दे आर कवरिंग. एक्सॉन्स हमारे पूरे ब्रेन में पाए जाते हैं, जो कि कहाँ के एक्सॉन्स डैमेज हो सकते हैं. डिफ्यूज एक्सोनल मतलब कि न्यूरॉन्स में जो हमारे एक्सॉन्स होते हैं वहां पे मेनली इंजरी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से हमें परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डैमेज देखने को मिल सकता है. तो जो हमारे ब्रेन होता है वहां पे मेजॉरिटी में न्यूरॉन्स ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, जैसे कि व्हाइट मैटर्स एरिया पे हमारे मेजॉरिटी ऑफ द न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, लाइक सेरेब्रल हेमिस्फीयर हो गया, बेसल गैंग्लिया, थैलेमस एंड ब्रेन स्टेम. सो यहाँ पे एक्सॉन्स में डैमेज होगा, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, एक्सोनल इंजरी में डिफ्यूज बाय द वर्ड इट्स क्लियरिंग कि एक्सॉन्स में डैमेज हो रहा है, जिसकी वजह से परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डैमेज देखने को मिल सकता है आपको. सो नेक्स्ट, इंट्राक्रैनियल हैमरेज. इंट्राक्रैनियल हैमरेज, अंडर दिस इंट्राक्रैनियल हैमरेज बोले तो इट इज आल्सो नोन एज ब्रेन ब्लीड. अंदर द ब्रेन ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड वेसल्स रप्चर हो गई हैं, ब्लड ट्रॉमा होने की वजह से ब्रेन में इंजरी हुई है, जिसकी वजह से हमें क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है. तो उसको हम हैमरेज बोलते हैं. इट इज अ लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल कंडीशन that occurs when blood leak inside or around the brain. It can be categorized as a follows. So intracranial hemorrhage मतलब कि ब्रेन के इनसाइड ब्लीडिंग हो रहा है, वो ब्लड ट्रॉमा की वजह से इनसाइड ब्रेन इंजरी, सीवियर टाइप ऑफ ब्रेन इंजरी हुई है. सो इंट्राक्रैनियल हैमरेज के यहाँ पे 4 टाइप्स हमने मेंशन की हैं, जिसमें है पहला सबड्यूरल हैमरेज. सबड्यूरल हैमरेज में हम कहाँ पे हैमरेज देखने को मिल सकता है, ब्लीडिंग अकर्स बिटवीन द ब्रेन एंड ड्यूरा मैटर.
ब्रेन और ड्यूरामेटर्स के बीच में अगर हमें ब्लीडिंग देखने को मिल रही है वो आपका होता है सबड्यूरल हेमरेज। नेक्स्ट है इपीड्यूरल हेमरेज। ब्लीडिंग अकर्स बिटवीन द ड्यूरामेटर एंड स्कल। ड्यूरामेटर और स्कल बोन्स के बीच में अगर हमें ब्लीडिंग देखने को मिल रही है वो आपका है इपीड्यूरल हेमरेज। नेक्स्ट है इंट्रा पैरेन्काइमल हेमरेज। In this, blood collect within the brain tissue itself, affecting the neurons and glial cell. इसमें क्या होता है, जो हमारा ब्लड लीक होता है वो हमारे ब्रेन टिश्यूज में ही इटसेल्फ वो कहाँ होता है, कलेक्ट होता रहता है, जिसकी वजह से वो क्या अफेक्ट करते हैं हमारे न्यूरॉन सेल्स को, साथ में ग्लियल सेल्स हमारी अफेक्ट होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सेरेब्रल हैमरेज। सेरेब्रल हैमरेज मतलब ब्लीडिंग कैन बी सीन विद इन द सेरेब्रम इटसेल्फ। ओके। Next we come to the causes. What are the common causes which can cause the head injury? So first, most of the cases we can see head injury is causing by due to the road traffic accident. ठीक है, तो RT is the major cause of head injury. Next है गन सूट मतलब कि कोई भी कहीं पे भी ऐसे फाइटिंग हो रही है किसी भी रीजन की वजह से, कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस या फिर एनी टाइप ऑफ वायलेंस इज देयर, सो अंडर दैट गन सूट की वजह से जो गोली है वो हमारे सर में पेनिट्रेट करके हेड इंजरी कॉज कर सकती है, इनसाइड ट्रॉमा हो सकता है। तो गन सूट भी एक टाइप ऑफ हेड इंजरी के कॉज हो सकता है। हाई फॉल, अगर हम कहीं पे हाइट से गिर रहे हैं, बहुत ऊंचाई से गिर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें हेड इंजरी, सीवियर टाइप ऑफ हेड इंजरी देखने को मिल सकता है। कार एक्सीडेंट हो रहा है, ये भी एक मेजर कॉज हो सकता है। फिजिकल वायलेंस और असॉल्ट, डोमेस्टिक वायलेंस या फिर किसी भी रीजन की वजह से कोई भी असॉल्ट हो रहा है, फिजिकल वायलेंस हो रहा है, ड्यूरिंग दैट आल्सो हेड इंजरी देखने को मिल सकता है। स्पोर्ट इंजरी, ड्यूरिंग स्पोर्ट्स आल्सो सम गिरने की वजह से तो वो हेड इंजरी कॉज कर सकता है। तो दीज आर द सम मेजर कॉजेज एंड कॉमन कॉजेज व्हिच कैन कॉज द हेड इंजरी। सो नेक्स्ट, पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी मतलब कि हेड इंजरी के बाद हमें क्या क्या चीजें, हमारे ब्रेन्स में क्या क्या प्रोसेस अकर हो रहा है, क्या क्या चीजें हमें देखने को मिल सकती हैं, वो हम देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी में। सो पैथोफिजियोलॉजी पहला पॉइंट है, ट्रॉमेटिक इंजरी कॉजेज द ब्रेन स्वेलिंग और ब्लीडिंग। सपोज कि कोई भी ट्रॉमा हो रहा है हमारे हेड में, उसकी वजह से कहीं पे भी ट्रॉमा या इंजरी हो रही है, तो पहली चीजें हमें क्या देखने को मिलती हैं, ब्लीडिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, ब्लीडिंग, स्वेलिंग या फिर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स भी देखने को मिल सकता है, इन्फ्लामेशंस भी देखने को मिल सकते हैं। सो ब्लीडिंग और स्वेलिंग हो रही है जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन देखने को मिल रहा है। सपोज कि हमारे इनसाइड ब्रेन में इंजरी हुई है, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स हो रहा है, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स हो रहा है, उस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा ब्रेन कंटेंट है, वॉल्यूम है, वो इंक्रीज होगा। ठीक है, स्वेलिंग ब्लीडिंग की वजह से वो वॉल्यूम इंक्रीज होगा ना। देन क्रैनियम जो हमारा होता है, क्रैनियम बोन, वो रिजिड होती है, हार्ड होती है, उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, तो उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी ना होने की वजह से जो हमारा ब्रेन कंटेंट है वो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है हमारे क्रैनियम पे, और वहां पे हमारा CSF फ्लूइड होता है जिसका प्रेशर भी इंक्रीज होता है। तो CSF का प्रेशर इंक्रीज हो रहा है जिसकी वजह से भी हमारी जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन में जो ब्लड वेसल्स हैं उन पे भी प्रेशर पड़ता है, उन पे प्रेशर पड़ता है तो ब्लड फ्लो भी क्या होगा, रिस्ट्रिक्टेड होगा, प्रॉपर्ली ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी ब्रेन पे, जिसकी वजह से इंटरप्शन ऑफ ब्लड फ्लो देखने को मिलेगा। फर्दर क्या देखने को मिल सकता है, अगर प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है ब्रेन में तो उसकी वजह से क्या देखने को मिल सकता है, सेरेब्रल हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया मतलब कि ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, ब्लड के थ्रू ही ऑक्सीजन हमारे ब्रेन तक पहुंचती है, अगर प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है तो हाइपोक्सिया कैन बी सीन। हाइपोक्सिया की वजह से इस्चीमिया हो जाएगा, अगर कांस्टेंट ऐसे बना रहा, ब्लड सप्लाई इंटरप्टेड है, कांस्टेंट ऐसे बना रहा तो हमें इस्चीमिया देखने को मिल सकता है। इस्चीमिया फर्दर कैन लीड टू further consequences in brain injury and can leads to brain death also. So again we see point wise point, traumatic brain injury causes brain swelling or bleeding, brain में swelling और bleeding हो रहा है trauma की वजह से। further क्या होगा, rigid cranium provides no room for expansion leading to increase the intracranial pressure। ठीक है, ऑलरेडी बताया स्वेलिंग और ब्लीडिंग होगी हमारे ब्रेन्स में जिसकी वजह से वॉल्यूम कंटेंट इंक्रीज होगा, क्रैनियम रिजिड है, उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, अंदर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है जिसकी वजह से इंट्राक्रैनियल प्रेशर विल बी इंक्रीज।
नेक्स्ट, राइजिंग प्रेशर कंप्रेसेस द ब्लड वेसल्स, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे ब्लड वेसल्स पे प्रेशर पड़ रहा है और स्लो द ब्लड फ्लो विद इन द ब्रेन, ब्रेन में ब्लड सप्लाई भी रिड्यूस हो रही है, रिड्यूस द ब्लड फ्लो रिजल्ट इन द सेरेब्रल हाइपोक्सिया, दैट कैन लीड द सेरेब्रल हाइपोक्सिया एंड इस्चीमिया. So intracranial pressure continue to increase progressively. इसकी वजह से क्या कांस्टेंट प्रेशर बना है, इसकी वजह से आईसीपी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है. सेरेब्रल ब्लड फ्लो सीज, एक टाइम आएगा कि कंटिन्यूअसली सीज हो जाता है ब्लड प्रॉपर्ली, अगर फ्लो नहीं हो रहा है तो सीजेशन अब देखने को मिल सकता है क्योंकि इस्चीमिया हो रहा है. ठीक है, दिस सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स अल्टीमेटली लीड्स टू ब्रेन डेड. So these are the pathophysiology of the head injury. Next, we will move to the clinical manifestation that we can as sign and symptoms. What are the sign and symptoms you can see in a head injury? So first is disturbance in consciousness. किसी को भी सडनली हेड इंजरी होती है, कभी भी देखा होगा कि सडनली अगर हेड इंजरी होती है तो उस पर्सन का थोड़ा सा कॉन्शियसनेस अल्टर्ड हो जाता है, समटाइम्स उसको समझ नहीं आता वो कहाँ पे है कैसे है, डिजीनेस टाइप का होता है, चक्कर जैसा आता है, जब भी थोड़ा रिलैक्स होता है फिर वो थोड़ा सा बोलता है. तो ये कॉन्शियसनेस लेवल अल्टर्ड, जैसे कि ऑलरेडी क्लासिफिकेशन में हमने बताया माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, तो डिपेंड करता है किस टाइप की हेड इंजरी हुई है और कितनी देर तक, अगर कॉन्शियसनेस लेवल की बात करें तो कितनी देर तक लेवल अल्टर्ड हो रहा है कॉन्शियसनेस लेवल, उसके अकॉर्डिंग हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि किस टाइप की हेड इंजरी हुई है, ये माइल्ड टाइप है, मॉडरेट है, सीवियर है. तो डिस्टर्बेंसेस इन द कॉन्शियसनेस देखने को मिल सकता है. इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर, ऑलरेडी बताया, कहीं पे भी ब्लड वेसल्स इंजरी हो रही है जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम ब्रेन का वॉल्यूम इनसाइड इंक्रीज होगा जिसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज होगा. सो इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज देखने को मिल सकता है. हेडेक, जाहिर है हेडेक, चोट लग रही है सर में तो हेडेक होगा ही. वर्टिगो मतलब चक्कर जैसा आएगा उस पर्सन को. डिसओरिएंटेशन, डिसओरिएंटेशन मतलब कि वो फॉर शॉर्ट टाइम वो ओरिएंटेड नहीं रहेगा आसपास की चीजों से, उसको कुछ भी याद नहीं रहेगा, डिसओरिएंटेशन भी देखने को मिल सकता है. एजिटेशन, उसको थोड़ा घबराहट जैसे लगेगा. रेस्टलेसनेस भी देखने को मिल सकता है. डिजीनेस. ठीक है, वाइटल साइंस में भी चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि टैकीकार्डिया, टैकीपीनिया, इंक्रीज हार्ट रेट और इंक्रीज पल्स रेट भी देखने को मिल सकता है. नेक्स्ट, ऑलरेडी बताया वाइटल साइंस में चेंजेस, टैकीकार्डिया, टैकीपीनिया, इवन हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन आल्सो कैन बी सीन. इट डिपेंड कि कितना ब्लड लॉस हुआ है, समटाइम्स ब्लड बहुत ज्यादा लॉस होता है तो शॉक की कंडीशन पे लीड हो सकती है, उस टाइम पे हाइपोटेंशन एंड ऑल देखने को मिल सकता है. अल्ट्रेशन और अब्सेंस ऑफ कफ और गैग रिफ्लेक्स. अल्ट्रेशन एंड अब्सेंस, समटाइम्स हमारा हेड इंजरी की वजह से अगर नर्व्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है उसकी वजह से हमें गैग रिफ्लेक्स अल्टर्ड या फिर अब्सेंट देखने को मिलते हैं. गैग रिफ्लेक्स साथ में कफ रिफ्लेक्स. ठीक है, तो गैग रिफ्लेक्स को हम कैसे असेस करेंगे कि पर्सन का प्रेजेंट है या अब्सेंट है, उसके लिए हमें कॉटन स्टिक्स लेना होता है. कॉटन स्टिक्स का हमें यूज करके माउथ में हमारा ऊपर जो इनसाइड माउथ वुल्वा इज देयर, सेंटर में वुल्वा होता है, साइड में हमारी पैरोटिड ग्लैंड्स होती हैं, तो उल्बा पे हमें उसको जो हमारी कॉटन स्टिक्स है उसको फाइनली टच करना होता है जिसकी वजह से सॉफ्ट पैलेट इज देयर. सॉफ्ट पैलेट एंड हार्ड पैलेट. तो सॉफ्ट पैलेट में क्या होता है, सॉफ्ट पैलेट में कॉन्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है, दैट इज द पॉजिटिव गैग रिफ्लेक्स. पॉजिटिव बोले तो नॉर्मल है, अगर कोई भी ऐसा कॉन्स्ट्रक्शन नहीं देखने को मिल रहा है हमारे सॉफ्ट पैलेट में, इसका मतलब है कि हमारा गैग रिफ्लेक्स क्या है, अब्सेंट है. ठीक है, तो ऐसे हम गैग रिफ्लेक्स चेक कर सकते हैं प्रॉपर है कि नहीं है, तो ये अल्ट्रेशन देखने को मिल सकता है. देन है विजुअल एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट. विजुअल एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट भी देखने को मिल सकता है. ठीक है, अगर हमारी क्रैनियल नर्व्स इन्वॉल्व हो रही हैं तो जैसे हियरिंग के लिए हमारी 8th क्रैनियल नर्व वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व मेनली रिस्पॉन्सिबल होती है. अगर वहाँ पे कुछ भी ऐसा डैमेज हो रहा है तो उसके लिए हमें यहाँ पे हियरिंग इम्पेयरमेंट एंड ऑल देखने को मिल सकता है. नेक्स्ट इज हेमीपैरेसिस एंड हेमीप्लाजिया. हेमीपैरेसिस क्या होता है, हेमीपैरेसिस, पैरेसिस वर्ड वी आर यूजिंग फॉर वीकनेस, वीकनेस ऑफ मसल्स. सो वीकनेस हमें हाफ बॉडी, हेमी मतलब हाफ होता है, पैरेसिस मतलब वीकनेस देखने को मिलेगा, हाफ बॉडी में वीकनेस देखने को मिल सकता है. हेमीप्लाजिया मतलब हाफ बॉडी में पैरालिसिस देखने को मिल सकता है.
तो ये मेनली अगर नर्व्स इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, क्रैनियल नर्व्स इन्वॉल्व हो रही है, उसकी वजह से हेमीप्लाजिया आपको पैरालिसिस मेनली देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट वन इज पर्सनालिटी चेंजेस। पर्सनालिटी चेंजेस आल्सो कैन बी सीन, क्योंकि कहीं ना कहीं पर्सन का अल्टर्ड हो रहा है, मेमोरी भी, परसेप्शन भी, कॉग्निटिव फंक्शंस आल्सो गोइंग टू डिस्टर्ब हियर। तो इसकी वजह से हमें पर्सनालिटी चेंजेस भी देखने को मिल सकता, इम्पेयरमेंट इन मेंटल स्टेटस, ठीक है, मेंटल स्टेटस भी इम्पेयर्ड देखने को मिलेगा, जैसे कि अटेंशन और परसेप्शन इसका थोड़ा सा अल्टर देखने को मिलेगा अगर सीवियर टाइप ऑफ हेड इंजरी हो रही है तो उस टाइम पे। रिस्पायरेटरी इरेगुलरिटीज देखने को मिल सकती है अगर इन्वॉल्वमेंट हो रहा है हमारे मेडुला ऑब्लंगाटा, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द रिस्पायरेशन। तो अगर इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, इंजरी हो रही है, इसकी वजह से रिस्पायरेटरी इरेगुलरिटीज भी देखने को मिल सकती है। तो उस कंडीशन में पर्सन को ब्रीथिंग डिफिकल्टीज वगैरह देखने को मिल सकती है। उस टाइम पे हमें नीड है कि वेंटिलेटरी सपोर्ट, एक्स्ट्रा वेंटिलेटर सपोर्ट देने की नीड होती है, वेंटिलेटर भी समटाइम्स प्रोवाइड करने की नीड होती है। अल्टर द स्लीप हैबिट, हेड इंजरी की वजह से समटाइम्स स्लीप पैटर्न भी डिस्टर्ब हो सकता है, हेडेक वगैरह इन सब रीजन की वजह से भी। सो ये सारी चीज़ें कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ये सब देखने को हमें मिल सकते हैं अगर हेड इंजरी है तो। नेक्स्ट है हैलो साइन। हैलो साइन मेनली अगर बैसिलर स्कल फ्रैक्चर, ऑलरेडी स्कल फ्रैक्चर में बताया, बैसिलर स्कल फ्रैक्चर हो रहा है, उस कंडीशन पे आपको हैलो साइन देखने को मिल सकता है। इसमें अगर स्कल फ्रैक्चर होता है उसमें कुछ स्पेसिफिक साइंस हमें देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि राइनोरिया ओटोरिया। राइनोरिया मतलब कि लीकेज ऑफ सेरिब्रल फ्लूइड फ्रॉम द नोज। नोज से क्या होगा, सीएसएफ का लीकेज हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। ओटोरिया मतलब कि लीकेज ऑफ सेरिब्रल फ्लूइड फ्रॉम द ईयर, कान से। ओटोरिया डिनोट फॉर ईयर, राइनोरिया डिनोट फॉर नोज, ठीक है। नेक्स्ट वन इज रिकून आइज। रिकून आइज वी ऑल्सो कैन से पांडा आइज। पांडा आइज में क्या होता है, पेरी ऑर्बिटल इनसाइड द अराउंड द आइज, ऑर्बिटल कैविटी के साइड्स में हमें अराउंड द क्या देखने को मिलता है, इकाइमोसिस देखने को मिलता है, ठीक है। अगर ब्लड वेसल्स रप्चर इनसाइड, अगर वेसिलर स्कल फ्रैक्चर हो रहा है उसकी वजह से ब्लीडिंग हमारे आइज के अराउंड टिश्यूज में क्या हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है, जिसकी वजह से जो है इकाइमोसिस हमें अराउंड द आइज देखने को मिलता है। बैटल साइन में क्या होता है, पोस्ट ऑरिकल इकाइमोसिस। इसको हम पोस्ट ऑरिकल इकाइमोसिस मतलब अराउंड, ऑरिकल बोले तो हमारा ईयर पिन्ना, ईयर पिन्ना के मतलब कि बिहाइंड हमें इकाइमोसिस देखने को मिलता है। इसमें भी वही हमारा बेसल स्कल फ्रैक्चर के कंडीशन में ही देखने को मिलता है। तो ये मेन 4 साइंस हैं जो कि हेड इंजरी के केसेस में आपको देखने को मिल सकते हैं अगर बैसिलर स्कल फ्रैक्चर हुआ है तो, जिसमें राइनोरिया है, ओटोरिया है, बैटल साइन है एंड रिकून आई। रिकून आई आल्सो वी कैन से पांडा आई, बैटल साइन पोस्ट ऑरिकल इकाइमोसिस बोलते हैं। दीज आर द अनदर नेम। सो नेक्स्ट, as you can see in a picture, raccoon eye here around the orbital cavity you can see here ki ecchymosis is there, okay. Here you post auricle is there, post auricle ecchymosis you can see in a battle sign or post auricle ecchymosis. Raccoon eyes we can see panda eyes, okay. Next, next we'll see diagnostic evaluation. डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में सबसे पहला हम हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं। मतलब हिस्ट्री कलेक्शन में हमें क्या क्या चीजें करनी है कि उसको कहाँ पे कैसे चोट लगी है, कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ, वो सारी चीजें हम पूछेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन, ओवरऑल हमें फिजिकल एग्जामिनेशन में हेड इज इन्वॉल्विंग, सो हमें न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट प्रॉपरली करना है। सो न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट के टाइम पे हमें प्रॉपरली हमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसको हेड इंजरी हुई कहाँ पे है। सपोज कि हेड नॉर्मली माइनर इंजरी हुई है या फिर सीवियर टाइप ऑफ हेड इंजरी हुई है, इनसाइड स्कल फ्रैक्चर तो नहीं हुआ है, मतलब थोड़ा सा इवन हम पालपेट करके हेड एरिया को देख रहे हैं तो उससे हमें आइडिया लग सकता है कि कहाँ पे इंजरी हुई है। इवन कोई नर्व इन्वॉल्वमेंट तो नहीं, स्पाइनल सर्वाइकल रीजन आल्सो समटाइम्स इन्वॉल्व हो सकता है। तो उस टाइम पे हमें पाल्पेशन प्रॉपर्ली पूरे बॉडी का न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करते हैं, उस टाइम पे हम देख सकते हैं। नर्व इन्वॉल्वमेंट के लिए भी हमें रिफ्लेक्सेस वगैरह चेक करते हैं, उस टाइम पे भी हमें पता चल सकता है। सो
सिटी स्कैन ओवरऑल हम करते हैं मेनली प्रॉपर विजुअलाइजेशन के लिए, हेड में कहाँ पे इंजरी हुई है, कहाँ पे किस रीजन पे इंजरी हुई है, कौन सा लोब डैमेज हुआ है, उसके लिए प्रॉपर कंफर्मेशन के लिए हमें क्या करना होता है, सिटी स्कैन करवाना होता है। नेक्स्ट इज एमआरआई। सिटी स्कैन थोड़ा लिटिल इंफॉर्मेशन देता है, एमआरआई कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए हम एमआरआई के लिए जा सकते हैं। एक्सरे मेनली तब हम डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं जब भी कोई स्कल फ्रैक्चर या फिर स्पाइनल कॉर्ड फ्रैक्चर की कंडीशन में है, तो उस टाइम पे हमें स्कल और स्पाइन का हमें एक्सरे करवाना होता है, कहीं पे फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं है, वो चीजें हमें नोटिफाई करने के लिए। नेक्स्ट वन इज पेट, पॉजिट्रॉन इमेजन टोमोग्राफी। पॉजिट्रॉन इमेजन टोमोग्राफी, इसमें मेनली मेटाबॉलिज्म अब द ब्रेन प्रॉपर चेक करते हैं, कोई ब्लड वेसल्स और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ब्रेन में कोई इनसाइड प्रॉब्लम तो नहीं है, वो सारी चीजें हमें पॉजिट्रॉन इमेजन टोमोग्राफी के थ्रू हमें आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट वन इज एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी मेनली ब्रेन के ब्लड वेसल्स का विजुअलाइजेशन करते हैं, कौन सी ब्लड वेसल्स इंटरप्ट हो रही है, ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो वो चीजें हमें एंजियोग्राफी मेनली ब्लड वेसल्स के लिए विजुअलाइजेशन के लिए करते हैं, कहाँ पे इंटरप्शन है, क्या चीजें हैं। Next one is neuropsychological test. Neuropsychological test, why we are performing here in head injury, because here mental status also involving, mental status going to disturb here, motor system, motor impairment हो रहा है, sensory impairment हो रहा है, everything involve हो रहा है इसमें, तो इसीलिए हमें क्या करना है, न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट भी करना है, क्योंकि मेमोरी और अटेंशन वगैरह भी पर्सन का डिस्टर्ब हो रहा है इसलिए। नेक्स्ट, medical management. So under the medical management we will see कि क्या क्या चीजें, सपोज कि हेड इंजरी हुई है, तो इंजरी हुई है तो इन्फ्लामेटरी प्रोसेस देखने को मिलेगा, उसके लिए हमें क्या दे सकते हैं, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक मेनली बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए देते हैं, मेनली इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को ट्रीट करने के लिए हम यहाँ पे एंटीबायोटिक दे सकते हैं एज प्रिस्क्राइब बाय द फिजिशियन और डॉक्टर। नेक्स्ट वन इज एंटी इपिलेप्टिक थेरेपी। एंटी इपिलेप्टिक ड्रग वाई वी आर गिविंग हियर, क्योंकि समटाइम्स हेड इंजरी की वजह से हमारे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, जिसकी वजह से सीजर्स आ सकते हैं, तो उसको हमें रोकने के लिए, या फिर सीजर्स आ रहे हैं तो उसको हमें ट्रीट करने के लिए एंटी इपिलेप्टिक ड्रग्स देते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट वन इज सपोर्टिव मेजर्स। सपोर्टिव मेजर्स लाइक एयरवे मैनेजमेंट हमें करना है, जैसे ऑलरेडी वी डिस्कस कि मेडुला ऑब्लंगाटा इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से रिस्पायरेटरी इरेगुलरिटीज भी देखने को मिल सकती हैं, समटाइम्स सीवियरली देखने को मिल सकती हैं, जिसकी वजह से हमें उसको वेंटिलेटर सपोर्ट या ऑक्सीजन सपोर्ट देने की नीड हो सकती है। ऑलरेडी वेंटिलेटर सपोर्ट अगर नीडेड है तो हमें देना है, ट्रैकेओस्टमी की नीड है तो हमें ट्रैकेओस्टमी भी करनी है, वो चीजें हम करेंगे, वेंटिलेटर सपोर्ट देंगे। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट मेंटेनेंस। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट मेंटेनेंस, सपोज की हेड इंजरी हुई है, बहुत ज्यादा वुंड हो गया है, सीवियर ब्लड लॉस हो रहा है, हाइपोवॉल्यूमिक कंडीशन में पेशेंट जा रहा है, उस कंडीशन में हमें फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन करना है प्रॉपरली, कितना ब्लड लॉस हुआ उसके अकॉर्डिंग हमें फ्लूइड एडमिनिस्टर करना है। न्यूट्रिशनल सपोर्ट्स आल्सो वी हैव टू प्रोवाइड द पेशेंट। नेक्स्ट वन इज पेन एंड एंजाइटी मैनेजमेंट। अगर पेन है तो हमें एंटीपायरेटिक ड्रग लाइक पैरासीटामोल मेजरली हम हेड इंजरी में दे सकते हैं, तो हमें पेन को रिड्यूस करने के लिए हम देंगे मेडिसिन। एंजाइटी, उसको साइकोलॉजिकली सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे और एंजाइटी को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट, मैनेजमेंट। सो अंडर मैनेजमेंट, एडिक्वेट ऑक्सीजन। एडिक्वेट ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड करना है उस टाइम पे जब भी हमें रिस्पायरेटरी इरेगुलरिटीज पर्सन में देखने को मिल सकती हैं। उसके बाद में हमें हाइपर वेंटिलेशन। हाइपर वेंटिलेशन हमें क्यों देना है, ऑलरेडी हमने बताया कि इंक्रीज आईसीपी देखने को मिल रहा है हेड इंजरी में, तो इंक्रीज आईसीपी को मेनली हमें ट्रीट करने के लिए हाइपर वेंटिलेशन की नीड होती है। हाइपर वेंटिलेशन अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं उस टाइम पे एक्स्ट्रा CO2 जो है हम आउट कर सकते हैं बॉडी से, जिसकी वजह से हमें आईसीपी जो भी इंक्रीज है वो रिड्यूस हो सकता है, इसलिए हमें यहाँ हाइपर वेंटिलेशन दे रहे हैं। नेक्स्ट वन इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मैनिटॉल। मैनिटॉल ये डायूरेटिक्स मेडिसिन होती है, जो कि इसमें मेनली ऑस्मोटिक डायूरेटिक, मैनिटॉल इज द एग्जांपल ऑफ ऑस्मोटिक डायूरेटिक। सो डायूरेटिक इसलिए हम दे रहे हैं क्योंकि आईसीपी इंक्रीज हो रहा है, उसको हम रिड्यूस करने के लिए। तो
आईसीपी को रिड्यूस करने के लिए हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, हाइपर वेंटिलेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज मैनिटॉल, दैट इज द ऑस्मोटिक डायूरेटिक। अगर आईसीपी इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर है तो उसको भी ये रिड्यूस करता है मैनिटॉल। नेक्स्ट वन इज ड्रेनेज ऑफ सेरिब्रल फ्लूइड। सीएसएफ का फ्लूइड अगर बहुत ज्यादा एक्सेस हो रहा है, सीएसएफ सीएसएफ जो हमारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एक्युमुलेशन हो रहा है, एक्स्ट्रा एक्सक्रीशन हो रहा है, उसको हम क्या कर सकते हैं, ड्रेन आउट कर सकते हैं, बॉडी से ड्रेन आउट करके बाहर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वन यूज ऑफ डोपामिन, डोपामिन का भी हमें यूज करना है। नेक्स्ट वन इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का ये हमारी कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी देते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी मेनली हमें इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को ट्रीट करने के लिए देते हैं, तो हमें ये चीजें भी देना है क्योंकि ऑलरेडी इन्फ्लामेशन हो रहा है हेड इंजरी की वजह से। नेक्स्ट वन, हियर इज द सर्जिकल मैनेजमेंट। सो अंडर द सर्जिकल मैनेजमेंट हमें क्या करना है, सर्जरी में कुछ लाइक पहला हमने लिखा है डेब्रिटमेंट ऑफ पेनिट्रेशन। जैसे कि पेनिट्रेटेड इंजरी हुई है, स्कल बोन डिप्रेस्ड होके इनसाइड ब्रेन में जाके पेनिट्रेट हो गई है बोन्स, तो उसको हमें डेब्रिटमेंट करना है। वहां पे जितने एक्स्ट्रा डेड टिश्यूज हैं उनको रिमूव करना है और उसको रिपेयर करना है फिर से। दैट इज ओनली डेब्रिटमेंट ऑफ द पेनिट्रेशन। पेनिट्रेटेड व्हाट टाइप ऑफ इंजरी हुई है, जो भी एक्स्ट्रा डैमेज टिश्यूज हैं उनको हमें रिमूव करना है और रिपेयर करना है, दैट इज डेब्रिटमेंट ऑफ पेनिट्रेशन। नेक्स्ट वन इज एलिवेटिंग द डिप्रेस्ड फ्रैक्चर ऑफ द स्कल। सपोज कि सिर्फ डिप्रेस्ड फ्रैक्चर है तो उसको हमें एलिवेट करना है, जैसे डिप्रेस्ड एरिया को हमें एलिवेट करना है ताकि हम रिलीफ कर सकें जो भी प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है इनसाइड द ब्रेन और ट्रीट कर सकें। नेक्स्ट वन इज सुचरिंग ऑफ द सीवियर स्काल्प इंजरी। तो सीवियर स्काल्प टाइप ऑफ इंजरी हुई है, बहुत ज्यादा स्काल्प में सीवियर टाइप ऑफ इंजरी हुई है, बहुत बिग कट हुआ है, बड़ा सा वुंड हुआ है, तो उसको हमें सूचरिंग कर सकते हैं, क्योंकि अगर सूचरिंग नहीं कर रहे हैं तो ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो सकता है जिससे हाइपोवोलेमिया लीड हो सकती है। तो वहां पे हम सूचरिंग करके ब्लड लॉस को भी कम कर सकते हैं और इजिली वो हील होने में भी इजी रहेगा। नेक्स्ट वन इज क्रैनियोटोमी। क्रैनियोटोमी में लिए हम क्रैनियल बोन्स को ओपन करके इनसाइड जहाँ पे भी हेमाटोमास वगैरह हुए हैं उसको हमें रिमूव करना होता है। हेमाटोमास को ट्रीट करने के लिए मेनली हम क्रैनियोटोमी करते हैं इनसाइड ब्रेन, अगर हेमाटोमास देखने को मिला है तो। नेक्स्ट वन इज बुर होल सर्जरी। बुर होल सर्जरी मेनली अगर लोकलाइज्ड एरिया पे, स्मॉल एरिया पे ब्लड क्लॉट्स देखने को मिल रहे हैं इनसाइड ब्रेन, तो उसके लिए एक स्मॉल होल करते हैं, उसके थ्रू हमें जो भी कलेक्शन है, ब्लड कलेक्शन है, उसको रिमूव करते हैं और ट्रीट करते हैं। तो दीज आर द सर्जिकल मैनेजमेंट। सो डेब्रिटमेंट ऑफ पेनिट्रेटिंग, कोई पेनिट्रेटिंग इंजरी हो तो उसको हमें डेब्रिटमेंट करना है, जो भी डेड टिश्यूज हैं उनका हमें रिमूव करना है। एलिवेटिंग द डिप्रेस्ड फ्रैक्चर, जो भी डिप्रेस्ड फ्रैक्चर उसको एलिवेट करना है। अगर सीवियर टाइप ऑफ स्काल्प इंजरी हुई है तो उसका हमें क्या करना है, सूचरिंग करनी है, सूचरिंग करके ब्लड लॉस को कम कर सकते हैं और इजिली हील कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज क्रैनियोटोमी। क्रैनियोटोमी अगर बिग हेमाटोमास देखने को मिल रहा है इनसाइड ब्रेन तो उसको हमें हेमाटोमास को रिमूव करने के लिए हम क्रैनियोटोमी, क्रैनियम बोन्स को ओपन करके हमें सर्जिकली ट्रीट करना होता है। बुर होल सर्जरी में हमें स्मॉल होल करना होता है अगर स्मॉल एरिया में हेमाटोमास हुए हैं तो। सो दीज आर द सर्जिकल मैनेजमेंट। Next we will move to the nursing management. So under the nursing management सबसे पहला एयर मॉनिटरिंग, एयरवे मॉनिटरिंग। एयरवे मॉनिटरिंग, अगर ब्रीथिंग डिफिकल्टी है तो उसको हमें प्रॉपरली मॉनिटर करते रहना है। अगर नीड है तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है, अगर ऑक्सीजन सपोर्ट प्रोवाइड करने के बाद भी उसको डिफिकल्टीज हो रही है, नीडेड है तो हमें वेंटिलेटरी सपोर्ट देना है। न्यूरोलॉजिकल मॉनिटरिंग, न्यूरोलॉजिकल मॉनिटरिंग भी करना है, कॉन्शियसनेस लेवल को चेक करते रहना है। जीसीएस स्केल के थ्रू हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। मैनेजमेंट ऑफ द इंट्राक्रैनियल प्रेशर, इंट्राक्रैनियल प्रेशर का ऑलरेडी हमने बताया मैनेज कैसे करना है। आपको मैनिटॉल दे देना है, हाइपर वेंटिलेशन प्रोवाइड कर देना है, एक्स्ट्रा हो रहा है तो सीएसएफ को ड्रेन आउट कर देना है। तो ऐसा कुछ भी है तो हमें इंट्राक्रैनियल प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए हम ये सब मैनेजमेंट दे सकते हैं। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट मैनेज करना है। सीजर्स आ रहे हैं तो हमें जो भी प्रिस्क्राइब्ड हुई है डॉक्टर्स के द्वारा मेडिसिन वो प्रोवाइड करना है। अगर सीजर्स के टाइम पे हम पेशेंट के पास हैं तो उसको साइड लेटरल पोजीशंस देनी है और
ताकि हम उसके एस्पिरेशन को प्रिवेंट कर सके। फॉगी सिक्रेशन इज देयर ना ड्यूरिंग सीजर, सो उसको हम क्या करें, प्रिवेंट कर सके। हमें साइड लैटरल पोजीशन देनी है पेशेंट को, और साइड रेल्स अप करना है ताकि पेशेंट को फॉल होने से गिरा सके। ये सारे बेसिक मैनेजमेंट हम कर सकते हैं ड्यूरिंग सीजर। न्यूट्रिशनल सपोर्ट्स देना है पेशेंट को। नेक्स्ट वन इज इंश्योरिंग द पेशेंट इज फ्री फ्रॉम पेन। पेन मैनेजमेंट करना है, फ्री फ्रॉम पेन हमको उसको ऐसा फील कराना है। इसको हम पेन मैनेजमेंट के लिए हमें मेडिसिन, एंटीपायरेटिक मेडिसिन दे सकते हैं, और सम अदर नॉन फार्माकोलॉजिकल पेन मैनेजमेंट भी यूज कर सकते हैं, लाइक डिस्ट्रैक्शन थेरेपी, रिलैक्सेशन थेरेपी, ये सारी चीज़ें दे सकते हैं। प्रिवेंटिंग ऑफ द सेकेंडरी इंजरी, इसके अलावा अगर कुछ भी ऐसा इंजरी हुई है तो उसके साथ साथ हमें उसको भी ट्रीट करना है पेशेंट को। एंड देन मेंटेनिंग द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी हमें मेंटेन करके रखना है। नेक्स्ट वन, पेशेंट एजुकेशन, कुछ भी रिगार्डिंग हेल्थ, डाइट, न्यूट्रिशन सपोर्ट्स के रिगार्डिंग, वो सारी चीज़ें हमें पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन देना है रिगार्डिंग मेडिसिन, हाउ यू हैव टू टेक द मेडिसिन प्रॉपरली ऑन टाइम, एवरीथिंग वी हैव टू टीच द पेशेंट। होम सेफ्टी, अगर हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर रहे हैं तो होम पे उसको कैसे केयर देना है, पेरेंट्स को टीच करेंगे, अलॉन्ग विथ पेशेंट को टीच करेंगे वो खुद की केयर कैसे कर सकता है ड्यूरिंग होम। एंड फॉलोअप केयर के लिए हमें बोलना है कि आपको बीच बीच में आके कॉलेज हॉस्पिटल्स में दिखाना है, ट्रीटमेंट लेना है। सो नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लिकेशन। अंडर द कॉम्प्लिकेशंस ऑलरेडी अगर सीवियर टाइप ऑफ हेड इंजरी है तो सीजर्स देखने को मिल सकते हैं, एंड हेमाटोमा लाइक सबड्यूरल हेमाटोमा, एपिड्यूरल हेमाटोमा, इंट्रासेरेब्रल हेमाटोमास देखने को मिल सकते हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशन है हेड इंजरी के। सीवियर टाइप ऑफ हेड इंजरी हो रही है उस कंडीशन में ही हमें कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं। सो आई होप कि यू पीपल अंडरस्टैंड माई टॉपिक्स। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल rgcsk.edu लाइक दैट। अगर आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस पानी है तो थैंक यू।